Hello friends, so let's learn some important events, okay, after the fertilization or followed by fertilization, okay. So ultimately these are the event, okay, which is done after the fertilization, and the time period we should know, okay, when the this particular event is happening, or when the uh, entire interstitial implantation is completed, okay. So events and time period, with the time period, okay, that we should know, okay. So fertilization, if we suppose the fertilization done, okay, now, then after 30 hour there is a two cell stage of zygote is formed, okay, that is called as the blastomere. फर्टिलाइजेशन के बाद अल्टीमेटली जाइगोट फॉर्म होगा. एंड इफ यू सपोज फर्टिलाइजेशन इज डन नाउ, एंड आफ्टर 30 आवर from the now, okay, there is a formation of two cell stage, okay, that is called as a blastomere. Then 40 to 50 hour after the fertilization there is a 4 cell stage, okay. After 72 hour there is a 12 cell stage, okay. And after 96 hour, that is approximately 4 day after the fertilization, there is formation of 16 cell stage, okay, that is called as a morula. And that morula is enter into the uterine cavity, okay. Whatever the events are done up to the 4 day, okay, after the fertilization, they are taking place at the or in the fallopian tube or uterine tube, okay, or you can say oviduct, okay. So these are the terminology given to the uterine tube or fallopian tube, okay. So ultimately 2 cell stage, 4 cell stage, 12 cell stage, okay. And after that 12 there is a 16 cell stage, okay, that is nothing but a morula, okay. तो ये 2 सेल, 4 सेल, 12 एंड 16 सेल अल्टीमेटली ये जाइगोट का ही क्लीवेज हो रहा है, जाइगोट का ही माइटोटिक डिवीजन है, ओके. देन ऑन द 5th डे, ओके, अल्टीमेटली 4 डे पे एट द कंप्लीशन ऑफ द 4th डे हमारा जो मोरुला है दैट एंटर इनटू द यूट्राइन कैविटी, ओके. नाउ यूट्राइन कैविटी से अल्टीमेटली जो भी कॉन्सेप्शन का जो पार्ट है, ओके, दैट will implanted into the implanted into the endometrium, okay, not into the uterine cavity, okay. That you have to remember, the blastocyst or the part of the conception get implanted into the endometrium, not uterine cavity, okay, not endometrial cavity, okay. So ultimately the on the 5th day, okay, after the fertilization there is a formation of blastocyst, okay. Blastocyst you all know very well. There is a proper cavity, blastocele. There is a formation of inner cell mass, that is called as a embryonal cell, okay. And there is a formation of proper trophoblastic layer, okay. And after that ये जो blastocyst जब बन जाता है ना, जोनो पेलोसोडा जो लेयर होती है वो डिसअपियर हो जाता है, okay. तो आफ्टर द 5 day of fertilization, okay, as soon as blastocyst form, there is a disappear of the जोनो पेलोसोडा, okay. जोनो पेलोसोडा prevents the एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओके, एज यू ऑल नो वेरी वेल, ओके. जोना पेलोसोडा अगर ये लेयर नहीं रहेगा तो इम्प्लांटेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकता है, ओके. देर इज अ चांसेस, देर इज मे चांसेस दैट नथिंग बट द पर्टिकुलर मोरुला और द 12 cell stage or 4 cell stage, they may implanted into the fallopian tube, okay. Though to prevent the ectopic pregnancy, Zona pellucida is there, and Zona pellucida ultimately, as soon as our cell reaches to our uterine cavity, okay, the Zona pellucida layer disappear after the formation of blastocyst, okay. ये देखिए ऑन द 5th to 6th डे, ओके, देर इज अ ब्लास्टोसिस्ट अटैचमेंट टू द एंडोमेट्रियल सरफेस, ओके. एंडोमेट्रियल यू ऑल नो दैट नथिंग बट यूट्रस हैज अ 3 लेयर, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ओके. एंडोमेट्रियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर, यू दैट इज अ अलग कॉन्सेप्ट, ओके. स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रेटम, ओके, बेसालिस, जो भी कुछ है, जैसे कुछ 3 लेयर अल्टीमेटली रहता है. तो जो उसका जो इनर लेयर है, ओके, दैट नथिंग बट अगर बात करें स्ट्रेटम बेसालिस, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और एक स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, ओके, ऐसे 3 लेयर होते हैं. तो अगर मैं इनर टू अगर आउटर की बात करूं, ओके, दैट स्टार्टेड विद आवर स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, एंड हमारा इनर वाला जो लेयर है दैट इज नथिंग बट स्ट्रेटम बेसालिस, ओके. तो अल्टीमेटली जो स्ट्रेटम जो कॉम्पैक्टम है ना, वहाँ से अल्टीमेटली स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट में नहीं बोल सकते यहाँ पे, यू कैन आप बोल सकते हो कि इट टचेस विद, और यू कैन से द एंडोमेट्रियल सरफेस जो है ना, आउटर लेयर ऑफ एंडोमेट्रियल सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम. वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होता है. अटैचमेंट और पेनिट्रेशन और इम्प्लांटेशन इज डिफरेंट थिंग, ओके. दिस ऑल एंटिटीज आर डिफरेंट थिंग.
अटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि इम्प्लांट हो गया है, ओके, जस्ट वो अटैच्ड हुआ है, नॉट इम्प्लांट हुआ है, ओके। तो 6 to 7 डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइटो एंड सिंथेसिस ट्रोफोब्लास्ट, जो एक लेयर बनी थी ब्लास्टोसिस्ट में, ट्रोफोब्लास्टिक सेल की जो लेयर बनी थी वो अल्टीमेटली उसका डिफरेंशिएशन होता है इनटू द टू ट्रोफोब्लास्टिक cells, okay, that is called as the cyto and syncytiotrophoblastic cell, okay, or you can say syncytio and cytotrophoblastic layer, okay. 10th day after the fertilization, okay, there is a synthesis of the human chorionic gonadotropin by syncytiotrophoblasts, okay, and not only this hormone, there is a other hormone as well, prostaglandins, interleukinins, okay, interleukinins 3 4 5 6 12 11 13, okay, जो भी कुछ है ये सभी इंटरल्यूकिन्स, साइटोकाइनिन्स, ओके, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, देन अल्टीमेटली इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, दीज आर द ग्रोथ फैक्टर, इंटरल्यूकिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड वेरियस काइंड ऑफ हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय आवर सिंथेसियोट्रोफोब्लास्ट, ओके, क्योंकि आप जानते हो कि प्लेसेंटा अल्टीमेटली ये लेटर टाइम पीरियड में बनेगा और हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो अल्टीमेटली 14 डे तक ही रहता है, 14 डे तक ही कॉर्पस ल्यूटियम विल सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, ओके, एंड कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट हो जाएगा और जब प्लेसेंटा जब फॉर्म होगी उसके बीच का जो रेंज का जो टाइम पीरियड है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की नीडेड रहती है, ओके, देयर इज अ नीडेड ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, ओके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, ओके, दैट देयर इज अ नेसेसरी ऑफ द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और उसका जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है हमारा सिंथेसियोट्रोफोब्लास्टिक का सेल का लेयर, ओके, यानी कि वो जो सेल होते हैं ना सिंथेसियोट्रोफोब्लास्ट की जो सेल्स होते हैं ना, दे सीक्रेट्स अ वेरियस काइंड ऑफ हार्मोन्स, वेरियस काइंड ऑफ केमिकल मीडिएटर्स। केमिकल मीडिएटर्स क्यों रिक्वायर है? क्योंकि जो इम्प्लांटेशन है ना, जो अल्टीमेटली इम्प्लांटेशन 7 डे से स्टार्ट हो जाता है, ओके, इम्प्लांटेशन गेट स्टार्टेड फ्रॉम द 7 डे, ओके। तो अल्टीमेटली पहले 2 लेयर में डिवाइडेड होता है हमारा एक पर्टिकुलर ब्लास्टोसिस्ट, वो ब्लास्टोसिस्ट नाउ इट स्टार्टेड टू इम्प्लांट, ओके, वो इम्प्लांट कैसे होगा? 2 लेयर में डिवाइडेड हो गया है, दे नाउ एबल टू सीक्रेट अ वेरियस काइंड ऑफ केमिकल मीडिएटर्स, मैंने आपको बताया अल्टीमेटली वहाँ पे बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स वगैरह जो मैंने आपको बताया, तो वो सीक्रेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली दे हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ द दिस पर्टिकुलर ब्लास्टोसिस्ट इनटू द पर्टिकुलरली एंडोमेट्रियम, ओके, नॉट एंडोमेट्रियल कैविटी, ओके। तो ये देखिए मैंने आपको बताया ये 9th to 10th डे लैकुनार नेटवर्क्स फॉर्म होते हैं, ओके, ये सिंथेसियोट्रोफोब्लास्ट में अल्टीमेटली छोटे छोटे स्पीसीज होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लैकुनार स्पीसीज बोलते हैं, और लैकुनार नेटवर्क फॉर्म हो जाते हैं 9th to 10th डे में, ओके, और इस लैकुना में ही अल्टीमेटली मटरनल ब्लड आता है, ओके। 10th to 11th डे, ओके, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन Trophoblast invade endometrial sinusoids, okay, establishing uteroplacental circulation, okay, and after the 11th day, okay, there is a formation of, or there is a complete implantation of the particular product of conception, okay, into the particularly endometrium, okay, interstitial implantation completed with entire decidual coverage, okay, पूरा वो कवर कर लेता है और जो जहाँ से उसकी एंट्री होती है वहाँ पे फाइब्रिन प्लग बन जाता है, एपिथेलियल प्रॉपर तरीके से फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि पूरा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन जो भी कुछ ब्लास्टोसिस्ट है, ओके, वो अभी एंडोमेट्रियम में चला गया है, ओके, और पूरा जाने के बाद अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनने के बाद अल्टीमेटली वो क्या करता है पता है आपको? अल्टीमेटली there is a on 13th day, okay, there is a on 13th day after this particular fertilization there is a formation of primary villi, 16th day secondary villi, okay, and 21st day that is nothing but there is a formation of tertiary villi, okay. Why this villi is necessary on these particular events, okay, after the fertilization? Because the primary villi ultimately these villi help in the formation of feto-placenta circulation, or you can say these villi help in the feto-maternal circulation, okay. तो प्राइमरी विला में आप अल्टीमेटली जब जो प्लेसेंटा सर्कुलेशन होता है ना, व्हेन यू विल स्टडी दैट पर्टिकुलर सर्कुलेशन टॉपिक, देन यू विल गेट नॉलेज अबाउट द विला, ओके, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर विला, ओके। तो अल्टीमेटली साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल इन्वेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी विला बोलते हैं। और अल्टीमेटली जब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इन्वेट्स इनटू द साइटोट्रोफोब्लास्ट, देन इट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी विला, and ultimately at the later time
जो मेसोडर्मल जो लेयर होते हैं, ओके, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म के जो सेल्स होते हैं, वो जब इन्वेट करके जब वो सेकेंडरी विला जब फॉर्म करते हैं, अल्टीमेटली उनका डिफ्रेंशिएशन होता है इनटू द वेरियस काइंड ऑफ पर्टिकुलरली ब्लड वेसल्स, ओके, दैट इज नथिंग बट अ फीटल ब्लड वेसल्स, ओके। बाद में वो लेटर टाइम में वहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड बनता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में नंबर ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स वगैरह रहते हैं, अम्बिलिकल वेन एंड अम्बिलिकल आर्टरीज, ओके, वो कनेक्टिंग स्टॉक में बनता है। लेकिन पूरे अराउंड्स में डेसिडुअल जो कवरेज हुआ है, ओके, वहाँ पे हमारा टर्शरी विलाय वगैरह बनता है, ओके। तो 13th डे, 16th डे और 21st डे विलाय कंप्लीटेड हो जाती है, और 21st एंड 22nd डे वहाँ पे फीटल हार्ट और फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, ओके। फीटल हार्ट अल्टीमेटली वो लेटर पीरियड में बनेगा, लेकिन जस्ट एक उसका जो स्ट्रक्चरल है ना, और यू कैन से जिससे वो मतलब वो जो सेल जिससे फीटल हार्ट बनने वाला है वो इनिशियली यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ओके। यू विल नॉट एबल टू एसेस द फीटल हार्ट साउंड, ओके नाउ, बट फीटल हार्ट यहाँ पे उसके जो सेल्स होते हैं, ओके, जिससे वो लेटर टाइम पीरियड में वो डेवलप होगा, वो यहाँ पे फॉर्म हो चुका रहता है, ओके। तो फर्स्ट ऑर्गन अल्टीमेटली फीटल हार्ट ही बनता है, एंड अल्टीमेटली ये देखिए फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्टेड ऑन द 21st to 22nd डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ओके। दीज आर द इवेंट्स डन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ओके, द इवेंट्स with their time period, okay, the events with their proper time, okay। तो इसका जो नॉलेज है दैट वी शुड नो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी विला, सेकेंडरी विला, टर्शरी विला, इसका इंपॉर्टेंस है। ये विला अल्टीमेटली बाद में इनका एट्रोफिक हो जाता है, ओके, दे गेट एट्रोफी एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कोरियोनिक लीव, ओके। कोरियोनिक लीव एंड कोरियोनिक फ्रंटोसम ये अलग टॉपिक है, ओके, प्लेसेंटा सर्कुलेशन में whenever we will get time that we will discuss there, okay। So that is nothing but the events done after the fertilization, okay।